Inorganic Chemistry 2, Module number 2, title Crystal Field Theory 2. Table of Content 1. Learning Outcome 2. Introduction 2.0 What is CFSE 3. Crystal Field Stabilization Energy for Octahedral Complex 3.1 Calculation CFSE 3.2 Stability of various configuration 4th CFSE in Thermodynamics Data 4.1 Exothermic enthalpy of hydration of bivalent ion of first condition series 4.2 Ionic radar of the 3D divalent metal ion. Learning outcome. After studying this model, you shall be able to ये मॉड्यूल स्टडी करने के बाद क्या सीखोगे. Learn how to calculate the crystal field stabilization energy value. तो crystallization field stabilization energy value को कैसे कैलकुलेट करोगे. Learn about the stability of various configuration. अलग अलग configuration की stability सीखेंगे. Identify the difference between CFSE value for high spin and low spin cases. High spin और low spin का crystal field splitting का difference identify करना पड़ेगा. Evaluate the thermodynamic aspect of CFSE value. CFSE value का thermodynamic aspect evaluate करना पड़ेगा. Introduction. What is CFSE? Crystal field stabilization energy is defined as stability achieved by placing a transition metal ion in crystal field originated by a group of ligands arranged in a particular symmetry. क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे. स्टेबिलिटी जो अचीव होता है जब ट्रांजिशन मेटल आयन क्रिस्टल फील्ड में रहता है और वो लिगैंड का ग्रुप्स की वजह से अरेंज होता है सिमेट्रिकल पर्टिकुलर सिमेट्री में. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन लिगैंड फील्ड. तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो है वो होता है लिगैंड फील्ड की वजह से. Some of the orbitals become higher and lower and some lower in energy after splitting. तो ऑर्बिटल जो है वो उसके एनर्जी स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा रहता है या फिर कम रहता है. The electron occupying the lower set of orbital result in stabilization of center metal ion of the coordination complex with the amount of energy called crystal field stabilization energy. CFSE जो है crystal field stabilization energy. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का लोअर सेट पर ऑक्यूपाई होता है ताकि सेंट्रल मेटल आयन का जो स्टेबलाइजेशन जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो रहे. ठीक है. और उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. कैलकुलेशन ऑफ CFSE. When there are x electron in the T2g orbital and y electron in the EG orbital, total energy of electron relative to the average energy of the electron is known as the crystal field stabilization energy CFSE. तो CFSE जो है crystal field stabilization energy यहाँ पे T2g में x इलेक्ट्रॉन और y इलेक्ट्रॉन जो EG ऑर्बिटल में रहता है तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी रिलेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी से. तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. CFSE -0.4x + 0.6y डेल्टा 0. तो T2g ऑर्बिटल dxy dy z dzx. EG ऑर्बिटल में dz² dx² y². Splitting of the d orbital in an octahedral crystal field where the energy change measured with respect to the barycenter. तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जहाँ पे एनर्जी चेंज होता है और ये मेजर होता है barycenter के थ्रू. तो T2g में -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इजिकल टू -4 dq रहता है और EG में +0.6 डेल्टा octahedral equal to +6 dq रहता है. तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज 10 dq रहता है. CFSE therefore depend on number of electron in the d orbital of the metal. तो CFSE जो है डिपेंड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल का डी ऑर्बिटल में रहता है. x + y the value of delta 0 and a distribution electron between T2g and EG level. तो
CFSE जो है वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल का डी ऑर्बिटल में रहता है, x प्लस वाई, डेल्टा ज़ीरो का वैल्यू और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन T2G और EG लेवल के बीच में. When calculating the electronic configuration of transition metal complex, we should note that the electron always occupy the lowest energy configuration. तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करता है. CFSE कैलकुलेशन फॉर वेरियस डी ऑर्बिटल, बहुत सारे डी ऑर्बिटल का कैलकुलेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी मेटल कॉम्प्लेक्स D1. EG में T2G में एक इलेक्ट्रॉन रहता है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे CFSE का फॉर्मूला -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा ज़ीरो. यहाँ पे T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो x जो रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि x जो है T2G में. तो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0.4 हो जाएगा, राइट. तो CFSE का वैल्यू क्या है D1. तो D1 कॉन्फ़िगरेशन का CFSE वैल्यू क्या है, -0.4 डेल्टा ज़ीरो. फिर D2 में यहाँ पे CFSE जो है, यहाँ पे T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. सो यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 0.6 जो रहेगा 0, क्योंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसलिए 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना 0.8. CFSE वैल्यू हो जाएगा -0.8 डेल्टा ज़ीरो. फिर D3 में CFSE वैल्यू जो है, यहाँ पे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो D3 का CFSE वैल्यू क्या रहेगा, -1.2 डेल्टा ज़ीरो. फिर D4 में अभी डिफरेंस होगा हाई स्पिन और लो स्पिन के बीच में. तो हाई स्पिन मतलब जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, और लो स्पिन मतलब जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से. अभी ये D4 जो है, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2G में ही पेयर हो जाएगा, EG में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है. तो अभी T2G में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0. क्यों 0, क्योंकि EG में एक भी इलेक्ट्रॉन है. तो CFSE क्या होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन का, -1.6 डेल्टा ज़ीरो. अभी ये है D4 में का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी कम है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो EG में जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा. तो अभी T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो CFSE क्या होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टा ज़ीरो. तो -0.3 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब -1.2 प्लस 0.6, तो कितना हो जाएगा, -0.6 डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा CFSE D4 जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में है. When we have D1, D2, D3 case, there is no problem in assigning electronic configurations since it will be T2GN, where N signify the total number of D electron. तो D1, D2, D3 के केस में यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन का ऐसा कुछ फ़र्क नहीं रहेगा. यहाँ पे T2GN, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है T2G ऑर्बिटल में रहेगा. T2GN मतलब N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन. But with the addition of 4th electron, there are two possible configuration, T2G4 and T2G3EG1. लेकिन जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है D4 कॉन्फ़िगरेशन में, तब
दो टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, एक बनता है T2G4 और दूसरा बनता है T2G3 EG1। T2G4 किसकी वजह से होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की वजह से, क्योंकि उसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से, तो T2G4 होता है। और T2G3 EG1 किसकी वजह से होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा रहता है pairing energy से। The first configuration refer to a low spin case where the pairing of the electron occur in lower lying T2G level, whereas in second configuration, which is a high spin case, the pairing of electron does not occur in the lower level, but instead the fourth electron move to the next higher EG set of orbital। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लो स्पिन केस में है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जो होता है ओके। तो T2G4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिखाता है D4? क्योंकि ये लो स्पिन है कि मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो T2G लेवल में ही पेयर हो जाता है, ठीक है। और जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, का स्प्लिटिंग ज़्यादा है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से, इसीलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल में नहीं पेयर होता है, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर का हाई एनर्जी EG सेट ऑर्बिटल में चला जाता है। दिस टू कॉन्फ़िगरेशन डिफर इन CFSE बाय डेल्टा ज़ीरो। ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन जो है इन दोनों में फ़र्क कैसे डिटरमाइन होता है? CFSE का डेल्टा ज़ीरो वैल्यू की वजह से। So it is predicted that the T2G4 configuration should be in the lower energy। तो जो D4 configuration का T2G4 configuration है वो लोअर स्पिन लोअर है एनर्जी से, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। However, it is also noticeable that this However, this configuration involves the pairing of electron in one of the T2G orbitals, which cause repulsion between the paired electrons. ठीक है, so with the pairing energy P that act to destabilize the T2G4 configurations। so यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहता है पेयरिंग एनर्जी से, तो इसलिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है T2G का इलेक्ट्रॉन के साथ ही पेयर हो जाता है, दस वी, और इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है T2G4 और CFSE हो जाता है -1.6 डेल्टा ज़ीरो। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जोड़ी में रहते हैं, तो उन लोग का रिपल्शन रहता है एक दूसरे से, तो इसीलिए D4 का जो T2G4 कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबलाइज नहीं है। Thus we need to consider overall stabilization energy, which is the crystal phase stabilization energy CFSE plus the pairing energy PE। इसलिए CFSE में सिर्फ स्टेबलाइजेशन एनर्जी ही नहीं बल्कि पेयरिंग एनर्जी भी आता है ओवरऑल। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी मेटल कॉम्प्लेक्स D4 में जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है तो CFSE इज -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0 डेल्टा ज़ीरो, तो CFSE हो जाएगा -1.6 डेल्टा ज़ीरो प्लस P। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, दो इलेक्ट्रॉन जब पेयर रहता है तो उसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, तो इसकी वजह से पेयर एनर्जी के साथ T2G कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज होता है। तो ओवरऑल एनर्जी को अगर दिखाना है स्प्लिटिंग का तो CFSE तो -1.6 डेल्टा ज़ीरो प्लस P दिखाते हैं D4 में। और यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इधर पेयरिंग नहीं होगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग नहीं होगा तो किधर जाएगा? वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, EG ऑर्बिटल में जाएगा। तो CFSE इज इक्वल टू -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टा ज़ीरो। CFSE का है -1.2 प्लस
0.6 हो जाएगा, तो CFSE -0.6 डेल्टा 0 हो जाएगा।